Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sadaf Naz and I am lecturer at Government Degree Girls College, Block 12, Gulistane-e-Johar, Karachi. Today I am delivering you the lecture about a topic from macroeconomics for first year commerce and second year arts, that is money and its function and value. That chapter is a little bit big, so I have split the lecture in 3 or 4 sections. In today's lecture, what we are going to cover is the definition and evolution of money. That will be discussed in this lecture, and the rest of the topics will be covered in a coming series of lectures. Okay, so what we will get from today's lecture, what are the outline of today's lecture? We have to cover about what is money, actually what money is, and then the evolution of money, how the money evolved from the primitive phase till today's modern money which we have in our hands, and then the barter system and its difficulties, and the types of money, how many types of money we have. These topics will be covered in today's lecture, and you will able to answer all these after understanding today's lecture. So first of all, the thing is that what is money? Money, that topic is actually covered in a very vast chapter, because money is the most important thing to deal with. Okay, today's business of life, we can imagine that there is nowadays we can imagine that there is no world without money. ठीक है ना, हम आज के दौर में मनी के बगैर ज़िंदा रहने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर में जो है हमारे पास मनी मौजूद है. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ द केस. इन इनिशियल फेज, इन प्रिमिटिव फेज, when there is no concept of money, human beings are still there and they are also running their business of life. Okay, but actually what is money? मनी होता क्या है? ठीक है, हम किस चीज़ को जो है वो मैं आपसे आजकल पूछूं तो सिंपली द आंसर विल बी के पैसा, करेंसी नोट या कॉइन्स, दैट इज़ मनी. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस फ्रॉम इनिशियल फेज. हमेशा से ये पैसा हमारे हाथ में नहीं था. ये दौर भी गुजरा है शुरू में कि जब हमारे पास मनी की फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी. ओके, सो व्हाट इज़ मनी? Money is any material which is commonly accepted and generally used as a medium of exchange for all types of transactions. Thus, all kind of currency notes and coins plus check deposits etc. can be regarded as money. That is, anything which is generally accepted and used as a medium of exchange. Simply today what we can say, the money is on the basis of which we can get the thing which we need. What we do, जो भी हमें चाहिए होता है, हम मार्केट जाते हैं, हमारी पसंद की जो भी चीज़ होती है, we want to get that amount. First of all we will see the price tag. Okay, प्राइस टैग हम देखते हैं. प्राइस टैग पे जो अमाउंट लिखा होता है, दैट अमाउंट वी हैव टू पे टू द शॉपकीपर और द सेलर एंड गेट द थिंग ऑफ आवर डिज़ायर. सो सिंपली दैट इज़ वेरी ईजी नाउअडेज़, क्योंकि हमें पता होता है हर चीज़ को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर रहे होते हैं, और हम जो है जाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो मनी की टर्म्स में ले लेते हैं. ओके, सो anything which we are using for exchange of goods and services is known as money. That may be currency notes, coins, checks, deposits etc., and all these things will be regarded as money. Now for the proper definition of money, we have a list of definition. When I am going to prepare that lecture, I got a long list of definitions of money, but from point of view of your course, the easy definition which I get is 2 definition I am mentioning here. The first one is, money is anything that is regularly used in economic transactions and serves as a medium of exchange, a unit of account and a store of value. क्या मतलब है इसका? 3 different things which are mentioned in this definition of money. रेगुलरली यूज फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, वो चीज़ जिसको हम नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ आवर ओन डिज़ायर. अ यूनिट ऑफ अकाउंट,
each and everything can be measured in terms of money. That is a common measure value for all the things available in the market. हम हर चीज़ को in terms of money measure कर सकते हैं. What is the price of our mobile phone? What is the price of the dress we need? What is the price of any soap or shampoo bottle is? All these things can be measured in terms of a single unit, which is money. Okay, and a store of value, that is that value retains, वो वैल्यू बरकरार रहती है, चेंज नहीं होती. प्राइसेस चेंज होती हैं लेकिन वो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो बरकरार रहती है. दैट वैल्यू इज़ स्टोर्ड. ओके, 100 रुपीज़ की चीज़ है, दैट कैन बी ऑफ 150 बट दैट हैज़ अ पर्टिकुलर स्टोर वैल्यू. सो दैट इज़ द बेसिक one of the basic definition of money. We can define it in another words, that is, money is anything that is generally accepted in payment of goods and services or in repayment of debts. Okay, that is a little bit different concept, that anything for which we can pay in terms of money for any goods and services, anything which we have to pay in return of goods and services we are utilizing, and for the repayments of debts, जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं उनकी रीपेमेंट भी हम इन फॉर्म ऑफ मनी जो है वो करते हैं. तो उसको भी हम, कोई भी चीज़ जिसके फॉर्म में हम अपने कर्ज़ों को वापस कर सकें, दैट इज़ मनी. या जो हम अपनी गुड्स एंड सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पेमेंट करें, दैट इज़ मनी. दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ मनी. ओके, होप यू गेट दैट डेफिनेशन एज वेल. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है मनी का, मैंने आपसे कहा कि दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ हमारे हाथ में. आज जो मोस्ट रिफाइंड करेंसी नोट जो हमारे हाथों में है, ये हमेशा से नहीं था. दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ द केस. इन प्रिमिटिव टाइम व्हेन द आर केवमैन एज की अगर हम बात करें, तो एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी thing like that currency notes or coins or something like that. So money is evolved from primitive time to that modern banknote or currency or e-money. Okay, so we have different stages from history up till now, in which the money evolved itself in modern currency notes, bank notes, ATM cards, plastic money, whatever. ठीक है, we have 5 different stages which we come through from primitive time till till today modern world money. Okay, what are these? First one is commodity money or barter system, then metallic money, then we have paper money, and then credit money, and the last one is electronic money. Okay, these are the 5 different stages which we have during evolution of money from primitive time up till today's modern world. First one is commodity money or barter system, okay, in which direct exchange of goods and services takes place without any currency note. ठीक है, then we move towards the metallic money, in which precious metals are used as money. Then after that we move towards the paper money or paper currency. After that we move toward credit money or bank money, that is checks or credit cards, demand deposits, pay orders, etc. And then the most modern form of money is the electronic money. Okay, these are the 5 different steps which included in evolution of money. So first one, commodity money or barter system. That topic is in your book by the name of barter system or commodity money. ठीक है, बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ होगा. बार्टर सिस्टम के नाम से बार्टर सिस्टम जो है वो क्या है? सिंपली द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जिस वक्त कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, उस दौर में क्या था? डिफरेंट कमोडिटीज़ आर यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उसमें हम डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज की मदद से ही एक्सचेंज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डिज़ायर. यानी आपके पास मौजूद चीज़ की किसी दूसरे शख्स को ज़रूरत होती थी, आप उससे वो चीज़ क्या करते थे? अपनी मौजूद चीज़ उसको देते थे और उससे अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है ले सकते थे. दैट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डायरेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, विच इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम.
लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर यूज्ड। उस ज़माने में जो चीज़ें भी जो कीमती होती थी, जो लोगों के पास मौजूद होती थी, जिसमें मोस्टली एनिमल्स होते थे, काव है, गोट है, शीप है, और जो उनके पास राइस, ग्रेन्स, जो भी फूड आइटम्स होते थे, शीप्स हैं, वट एवर दे हैव विच दे थिंक दैट इज़ द प्रीशियस थिंग्स विच दे हैव, एंड दे डू नॉट नीड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एट दैट टाइम, सो दे एक्सचेंज इट विद द कमोडिटी ऑफ देयर डिज़ायर विद समवन who is willing or agree to exchange it with them. That system is known as barter system, that is direct exchange of goods and services by the help of other goods and services. ये है commodity money या barter system. ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या था? देयर वॉज अ टाइम व्हेन मनी डिड नॉट एग्जिस्ट, पीपल यूज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करना या सर्विसेज को सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करना. सच अ सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर, और द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर. ओके, when different commodities were used as a medium of exchange, cow, goat, excess, dried fish, that is known as the barter system. But that system is not an easy one. यानी आप इतनी उस वक्त तो खैर इकोनॉमी छोटी थी, तो दैट इज़ मच ईजियर. बट आजकल के दौर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गई, इतनी इकोनॉमी फैल गई है, उसमें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास एग्जैक्टली आपके अमाउंट, आपकी डिज़ायर्ड चीज़ मौजूद हो, और वो आपको देने पे भी विलिंग हो आपके पास मौजूद चीज़ के बदले में, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है ना, तो दैट इज़ नॉट अ ईजी way to exchange goods. So there are various difficulties in barter system, जिसकी वजह से फिर वो फेल हुआ, और उसके बाद फिर हम अपने सेकंड स्टेज पे यानी मेटालिक सिस्टम पे गए. What are the difficulties which we face during barter system? These are the lack of common measure of value. सबसे पहली चीज़ कि you don't have a common measure of value. What common measure of value we have today? Everything is measured in terms of currency. Whatever we have, we can measure it in terms of currency. Pen, pencil, books, copies, cell phones, furniture, home, everything can be measured in terms of money easily. ठीक है ना, 10,000 की है, 10 लाख की है, 10 रुपए की है, whatever. ठीक है, but in barter system we don't have any common measure of value. We don't have any divisibility. यानी अगर किसी के पास एक गोट है और उसको सिर्फ 1 किलो जो है वो आटा चाहिए या चावल चाहिए, तो अब वो उस गोट के हिस्से करके आधा काट के या एक टांग काट के नहीं दे सकता किसी को. ही हैज़ टू सेक्रीफाइस द होल गोट इन रिटर्न ऑफ ओनली 1 kg ऑफ फ्लोर, वीट और राइस. दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट सैक ऑफ राइस. लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो वी हैव टू सेक्रीफाइस दैट होल गोट फॉर जस्ट 1 kg ऑफ राइस. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट वी हैव नो common measure of values of the commodities which we are exchanging directly. Second is lack of double coincidence of want. यानी एक ही वक्त में दो ऐसे लोगों का मिलना जो कि अपने पास मौजूद चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने पे, म्यूचुअली एक्सचेंज करने पे विलिंग हो. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ढूंढना इकोनॉमी में, दैट इज़ नॉट ईजी वन. ओके, देन लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. आप चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते थे, पेरिशेबल आइटम्स होते थे. किसी चीज़ की आज वैल्यू कुछ और है, 4 रोज़ बाद जो है वो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो चीज़ ख़राब हो सकती है. पेरिशेबल आइटम्स भी होते थे, या फिर अब जैसे अगर जो है एनिमल्स, उस ज़माने में जो है एनिमल्स हेड या इस तरह शिकार करते थे, उनकी खालें हैं, ये हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइप की चीज़ों की हमेशा वैल्यू जो है, अगर कोई आप किसी वेजिटेबल के रिटर्न में अगर आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं किसी और चीज़ में, तो दैट इज़ नॉट ईजी कि हमेशा जो है उन चीज़ों की वैल्यू जो है वो सेम रहे और हम उसको ईजिली जो है वो स्टोर कर सकें. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट लेक्स द स्टोर ऑफ वैल्यूज़. देन वट वी हैव डिफ़िकल्टीज़ इन डेफर्ड पेमेंट्स, डिलेड पेमेंट्स. वो पेमेंट्स जो कि हमें फ़ौरन नहीं करनी होती. आज के दौर में हम बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे होते हैं कि अभी नहीं, हम आप अभी हमारे साथ बिज़नेस डील कर लें एंड वी विल रिटर्न इट, वी विल पे यू आफ्टर 6 months और आफ्टर अ ईयर. सो बिकॉज वी हैव अ पर्टिकुलर मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर इन फॉर्म ऑफ करेंसी, तो हम उसको जो है डिलेड पेमेंट की एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. बट in that barter system we don't have any way for deferred payments. And the next is the difficulties in tax collection.
टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज करती है, फॉर इनकम टैक्स है, जीएसटी है, या वट एवर प्रॉपर्टी टैक्स है, वो हमारे पास क्योंकि उनके पास एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी ईजिली जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है. लेकिन इन टर्म्स इन बार्टर सिस्टम, एज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, सो वी कांट pay taxes to the government, and that is a very difficult task for government to collect taxes from individuals in barter system. So these are the difficulties on the basis of which the barter system fails, and as the world evolves, as the economy grows, so we move from barter system towards the next system of metallic money. यानी फिर लोगों ने क्या किया कि कमोडिटी से जब जो है वो स्विच कर गए, जो भी हमारे पास जो प्रीशियस मेटल्स उस टाइम पे मौजूद थे उस पर स्विच किया उन्होंने, जो उस वक्त जो भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वट एवर मेटल्स थे है वो उस पर स्विच कर गए और उन्होंने मेटल्स को एज मनी यूज़ करना शुरू किया. शुरू में डायरेक्टली उन्होंने जो भी ऑर्नामेंट्स उनके पास, जो भी ज्वेलरी वगैरह उनके पास थी या मेटल्स थे, उनको उन्होंने शुरू में इस्तेमाल करना शुरू किया. एंड आफ्टर दैट दे यूज़ टू मेक द कॉइन्स. उन्होंने उस मेटल्स को कॉइन्स की फॉर्म में जो है वो चेंज करके और उसके बाद फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. वट एवर प्रीशियस मेटल्स अवेलेबल इन दैट टाइम, दीज आर यूज्ड फॉर मेटालिक मनी. Coinage, gold, silver were used as coins stamped by a competent authority. यानी कॉइन्स को यूज़ करते थे. शुरू में तो डायरेक्ट उन्होंने ज्वेलरीज को यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद बाकायदा जब उन्होंने कॉइन्स बनाए तो उसके ऊपर स्टैम्प लगती थी और किसी अथॉरिटी की जो है वो बाकायदा परमिशन के साथ जो है वो उन्होंने उसको एज मनी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. एज टाइम पास्ट, transportation and storage of coins become inconvenient and dangerous, but that is also not an easy task because these metals are quite heavy. They have security, they are most insecure from security point of view. ईज़िली जो है वो उसकी लूटमार हो जाती थी, लोग जो है वो छीन लेते थे. हैवी इतना होता था कि वो कहते थे ना कि पहले ज़माने में वो लोग जो है वो ऊँटों पे ख़जाने लाद के चलते थे. तो दैट इज़ नॉट ईजी. आजकल हमारा जो करेंसी है मॉडर्न मनी, तो हमारे पॉकेट्स में जो वॉलेट होते हैं वो भी हमें हैवी लग रहे होते हैं. हमारे पास सिंपली एक कार्ड की फॉर्म में मनी मौजूद है. कॉइन्स अगर हमारे पास आ जाएँ तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम उन कॉइन्स से जान छुड़ाएं, बिकॉज दे मेक आर पर्सेस और आर वॉलेट्स हैवी. तो उस ज़माने में जब लोगों के पास जो सिर्फ मेटलिक मनी होता था, तो उस ज़माने में उनके लिए उसको बेयर करना, उसको लेके कैरी करना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर द इंडिविजुअल. तो वो क्या करते थे कि उनके इस वजह से जो है फिर उन्होंने मेटालिक मनी की जगह कोई और सेकंड ऑप्शन जो है वो चूज़ करने की ज़रूरत जो है वो महसूस की. और किया क्या उन्होंने इसके लिए कि उन्होंने अपने प्रीशियस मेटल्स को उस ज़माने में जो गोल्ड स्मिथ होते थे उनके पास रखवाना शुरू किया और उसके बदले में उनसे रिसीट्स लेना शुरू कर दी. और वो रिसीट्स जो है दैट इज़ फुल्ली बैक्ड बाय दैट प्रीशियस मेटल, दैट इज़ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स. ठीक है. और कोई भी जो है वो उन रसीट्स को, उन सर्टिफिकेट्स को जो कि गोल्ड स्मिथ इशू करते थे, उनको जो है वो एज मनी यूज़ करता है. दैट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ करेंसी और पेपर नोट, पेपर मनी. ठीक है. शुरू में जो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया था मेटेलिक कॉइन्स के बाद जो है, जिसको उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया एज पेपर मनी, विच इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, पेपर करेंसी. ओके. पेपर करेंसी, व्हेन पेपर करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट, इट इज़ ओरिजिनेटेड एज अ रिसीट इशूड बाय गोल्ड स्मिथ. जिस गोल्ड स्मिथ के पास आप अपना जो भी प्रीशियस मेटल रखवाते थे वो आपको एक सर्टिफिकेट देता था. उस सर्टिफिकेट को आप जो है वो क्या करते थे, एज करेंसी यूज़ करते थे इन प्रिमिटिव टाइम. ठीक है. दैट नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. दीज रिसीट्स वर देन लेटर ऑन यूज पॉइंट्स, बट डिफरेंस इन वैल्यू और रिसीट्स वॉज बिकमिंग अ प्रॉब्लम देन. ये चीज़ भी इतनी जो है वो ईजी नहीं थी, क्योंकि उन रिसीट्स में जो वो डिफरेंसेस आना शुरू हुआ. फिर बाद नहीं थी, किसी के पास जो वो ज़्यादा अमाउंट है, किसी के पास कम अमाउंट है. सो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डेल्ट विथ. सो इसलिए जो क्या हुआ कि ये जो गोल्ड स्मिथ के सर्टिफिकेट्स थे ये भी बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं चले. उसके बाद फिर जो हमारे पास आया वो पेपर मनी का दौर आया. पेपर मनी जो कि बाकायदा जो है वो किसी अथॉरिटी की तरफ से आपको जो है वो असाइन की गई फॉर exchange of goods and services. Paper currency is made of paper and functions as a medium of exchange. Initially, paper currency carried a promise that it was convertible into fixed quantity of precious metallic gold and silver. शुरू में क्या हुआ कि उसकी बैक पे 100% गोल्ड या सिल्वर या प्रीशियस मेटल मौजूद होता था. शुरू में जो करेंसी आई उस वक्त
ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ वर्ल्ड वॉर वगैरह के बाद जब इकोनॉमीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हुई और ऐसे भी लोगों के पास जो है वो इतना जो है वो क्राइसिस आए और इकोनॉमी फैलना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद 100% बैक बाय गोल्ड वाली चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, ख़त्म होना शुरू हुई। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है दिस प्रॉमिस वाज एलिमिनेटेड इन 1914 इन इंग्लैंड एंड 1933 इन अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़ास तौर पे इकोनॉमीज़ जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गई, तो फिर उन्होंने सारी के सारे जो करेंसी थी, जो गोल्ड और सिल्वर था, वो गवर्नमेंट्स ने अपनी कस्टडी में रखना शुरू कर दिया, रिज़र्व में रखना शुरू कर दिया, और सिंपली एक रिप्रेजेंटेटिव मनी, एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी, जिसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में फियाट मनी कहते हैं, विच इज़ नॉट 100% बैक्ड बाय गोल्ड, बट दैट इज़ ओनली हैज़ अ वैल्यू because it is issued by some authority, it has signed by some authority. तो इसलिए जो उसको हम fiat money भी कहते हैं, the newspaper money which considered legal tender because the government says it is money, it has no backing of gold, silver और government securities. यानी हम आज 1000 रुपये के नोट को अगर 1000 रुपये का नोट मानते हैं तो इसलिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन के साथ जो है हमारे हाथों में मौजूद है। ठीक है, हमें नहीं तो अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, हम उसको नोट इसलिए मानते हैं, ईजिली हम यूज़ करते बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली बैक्ड बाय द साइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जाली नोट होगा तो उस पर जो कहीं ना कहीं कोई मसला होगा और फ़ौरन जो वो आपके दूसरी या तीसरी ट्रांजैक्शन में पकड़ा जाता है, कभी पहली ट्रांजैक्शन में ही पकड़ा जाता है। तो आज का दौर जो है वो अब हमारे पास सिंपली फियाट मनी है विच इज़ नॉट एक्चुअली बैक्ड बाय एनी गोल्ड सिल्वर। अगर है भी उसके प्रिंट, नोट तो प्रिंट होता है रिजर्व्स की बेस पे, लेकिन हम उसकी बेस पे डिमांड नहीं कर सकते कि आप ये करेंसी नोट रखें 1000 रुपये और इसके बदले में हमें जो 1000 रुपये का गोल्ड या 1000 रुपये का सिल्वर दे दें। दैट इज़ नॉट द वे, जो कि शुरू में मौजूद था जिसमें 100% था। हमें उस मनी को उसकी रिटर्न वैल्यू के हिसाब से जो है वो यूज़ करना है, हम उसको एक्सचेंज नहीं करवा सकते इन फॉर्म ऑफ एनी प्रीशियस मनी। दैट इज़ बेसिकली द पेपर मनी। पेपर मनी के बाद जो मज़ीद मॉडर्न फॉर्म आई, जब बैंक्स जो है वो फॉर्म हो गए, तो फिर हमारे पास क्रेडिट मनी और बैंक मनी आ गई, क्योंकि पेपर मनी के साथ भी जो फिर वो लोगों ने और क्विक करना चाहा तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, बैंक मनी। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इज़ पेपर करेंसी, मोस्ट लिक्विड फॉर्म, जिससे आप फौरी तौर पे चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा उसके जो है छिन जाने का और चोरी होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर लोगों ने जो है वो बैंक मनी या डिफरेंट टाइप ऑफ जो है डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह, पे ऑर्डर्स वगैरह यूज़ करना शुरू किए। बड़े अमाउंट्स के लिए ख़ास तौर पे लोग अभी भी पे ऑर्डर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। अब तो खैर आप लोगों के कॉलेजेस में फ़ीसेस नहीं होती, नहीं तो फ़ीसें होती थी, तो पहले हम क्या करते थे कि उसको जो है वो इन फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर जो है वो आपको जाके बैंक में जमा कराना पड़ता था और वो फिर आपको लाके जो इसकी रिसीट जो है वो कॉलेजेस में जमा करानी पड़ती थी। इसी तरह हर जगह का प्रोसेस होता था फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपको बैंक इशू करे वो क्या है, दैट इज़ क्रेडिट मनी और बैंक मनी। बैंक मनी इज़ द यूज़ ऑफ चेक्स ड्राफ्ट एज अ मीडियम ऑफ exchange. Checks draft have made it possible and easier to make transactions for large amount. बड़े अमाउंट्स के लिए 5 लाख का अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो 5 लाख आप जो करेंसी की फॉर्म में लें, उससे बेहतर है कि आप उनको जो है पे ऑर्डर कर दें। अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आपको एक पे ऑर्डर जो है या डिमांड डिपॉजिट दे दें। या इस तरह अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर आपको ट्रैवल करना है, देन इट्स सेफ टू यूज़ ट्रैवल चेक्स। ठीक है, अदर देन जो है करेंसी नोट्स, आप जो है ट्रैवल चेक्स के थ्रू जो है वो आप मूव करते हैं, हज पे जाते हैं या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, तो आप जो है ट्रैवलर चेक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ जाके आप उस कंट्री की करेंसी में जो है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं। तो दैट इज़ अ मच ईजियर वे। ठीक है, दीज आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होती है, ये सिक्योर भी होते हैं, सेफ़ भी होते हैं, इनके जो है वो छिन जाने का या चोरी हो जाने का ख़तरा कम होता है क्योंकि आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, दे आर सेफ़ एंड प्रोवाइड रिसीट्स, इनकी रिसीट्स होती हैं, ये जो है आसानी से हमें जो है वो हम इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दैट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड द लास्ट स्टेज, द मोस्ट मॉडर्न स्टेज इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी also known as e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital cash or digital currency, refers to money which is exchanged only electronically. आजकल आप मार्केट जाते हैं, सिंपली अपना डेबिट कार्ड आपने दिया,
अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, अपना ATM निकाला, डायरेक्ट आपने जो एक कार्ड के थ्रू जो उसको आपने स्वाइप किया एंड यू गेट योर ट्रांजैक्शन। आपको जो भी आपकी चीज़ चाहिए वो आपने सिंपली एक मशीन में कार्ड स्वाइप किया और आपकी जो पेमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक से हो गई। नो एक्चुअल करेंसी नोट इन योर वॉलेट इज़ प्रेजेंट। आपका अगर अल्लाह ना करे अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या अगर आपका ATM कार्ड चोरी हो जाए, आप बैंक कॉल करें, उसको क्लोज़ करवा लें, फ़ौरन बंद करवा लें, तो वो जो है आपका सेफ्टी भी है। और अब तो और भी ज़्यादा जो है जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से हर कोई जो है वो घरों में जो है वो कैद हो गया है, तो उसमें मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन बैंकिंग की टर्म जो है कि आप सिंपली घर पे बैठे बैठे आपने अपने बैंक की ऐप डाउनलोड की, एक बटन दबाया और एक क्लिक पे आपकी सारी पेमेंट्स, आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, आपकी ग्रॉसरी बिल्स हैं, आपके जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जो आपको करनी है वो सब की सब ऑनलाइन जो है वो डायरेक्टली जो है वो हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली द ई ट्रांजेक्शन बाय द हेल्प ऑफ ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, typically it involves the use of computer networks, the internet and the digital stored value system। ठीक है ना। और अब तो और डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस वगैरह आए हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो अभी मैं यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो अभी उस आप लोगों के लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर चीज़ है, लेकिन जो है वो और मॉडर्न फॉर्म है। तो इसके अंदर हम कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी की सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए जो अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ money. This is the most modern system of transferring fund using electronic communications. Payments are now made through magnetic strips cards such as bank debit card, credit card, ATM, etc. So that is the most मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो हम बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुए थे, कमोडिटी मनी से स्टार्ट हुए थे और आके अब हम कहाँ ठहरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। और जब अब मज़ीद जो आगे का दौर आ रहा है तो ये यकीनन एवोल्यूशन कभी रुकती नहीं है, टाइम के साथ साथ होती रहती है। तो यकीनन हम इस क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड से भी हट के अब हम डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे सारे पैसे हमारे एक्चुअल जो है वो हमारे कंप्यूटर के वॉलेट में होंगे और हमारे हाथों में इवन ये प्लास्टिक मनी या क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा। So that is the stage of money, that how money evolved from the commodity money system to the present modern money. Okay, my today's lecture I will end it up here. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी को डिस्कस करूँगी। आई होप यू विल गेट ऑल द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड हेयर। गुड लक, इसकी तैयारी करें, इसको जो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से बात होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।